So recently I got this comment and then I thought of making a Q&A kind of video. So I've been getting a lot of questions, the same repeated questions. Some questions are very descriptive, some are repeated, and most of the time, I don't know why, I have not been getting notifications of your comments. So I thought of making a YouTube video out of it, and I've been also getting some queries on LinkedIn, which I'll be discussing now. Also, all my answers would be completely based on my personal experiences. So use your brain as well. Just saying. And to introduce myself, I should have told that earlier, but anyways, hi guys. I'm Shrija, and I've recently graduated. I've completed my BLLB honors course from Amity Law School, Noida. Here I am answering all your questions. So let's get into it. Also, I've been making this video. AC भी नहीं चल रहा है मेरा, चेक करो. पंखा भी नहीं चल रहा है. एंड ये सेटअप मैंने जो बना रखा है, मतलब तकिया, उस पर एक और तकिया, एंड देन बुक्स का स्टैक है पूरा, उस पर 3-4 कपड़े, एंड बैलेंस किया हुआ है, मतलब फुल influencer vibe. First question, which is my college is starting in 2 months. Which skills should I learn before joining law school? First of all, relax. Because you do not need to enter law school knowing everything. Most people are figuring it out as they go. But a few things which would help you genuinely is networking. Make a very good, decent LinkedIn page. उसमें DP मत लगा देना WhatsApp, Insta वाली. It should be decent. थोड़ा formal कपड़े and all. And improve your writing skills, communication skills. I'm still working on it. I have to work a lot on few of my skills. I've graduated as well. You're just entering your college. There's a lot of time. But use your time wisely. Also, मैंने सबसे first year में, so there was this senior. I asked the same question to her, so she was like, start writing and everything. And but that skill really helped me throughout my internship, throughout my placement procedure, and a lot of other stuff. And one thing I would suggest, that don't compare yourself too much in the first year itself. I've been there, and everyone seems very sorted कि भाई हमको तो ये वाली जॉब लेनी है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती है. बट ट्रस्ट मी, people are equally confused. So chill. What was your CGPA? Girl, ये मत पूछा करो भाई, मुझे थोड़ा सा. Anyways, तो मेरा अभी 10th सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, बट अभी तक मेरा CGPA is I think 9.12 और 14 समथिंग लाइक दैट. तो वो है. बट हाँ, इतना ज़्यादा CGPA के पीछे भी मत अपनी नसें काटना कि भाई क्रेजी सीन हो गया है. ऑफकोर्स अ गुड CGPA हेल्प्स, बट इट्स नॉट ओनली thing defining your career. The next question is, how is Amity Law School academically and placement wise? मेरे दिमाग में वो रील आ रही है जो इंस्टा पे मैंने देख रखी है Amity की. Anyways, so yes, I did my degree from Amity Noida, and I'll be very honest कि academically it's decent. I mean, you cannot completely depend on classes. There are several things you should be doing, but the quality of experience depends on how proactive you are. For example, if few of my friends are from NLU, so I've heard them कि उनके में मूड कोर्ट इंट्रा, अब तो हमारे में होने लगा, पहले नहीं होता था. सो बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स, कल्चर फेस्ट वगैरह उन्होंने, मतलब कॉलेज उन्हें प्रोवाइड करता था. कॉलेज मैटर करता है ताकि वो आपको एक माहौल दे, एक इन्वायरमेंट दे, एंड देन यू चूज़ योर पाथ. बट इन एमिटी क्लासेस होती है, बहुत हेक्टिक होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट वो माहौल आपने खुद बनाना होता है. बिकॉज there are other things as well. Teachers, I'm more comfortable with my faculty than my classmates, because teachers are awesome. Some of them are very chill, very nice. They guide you like a family member. And placement का scene यार उतना अच्छा नहीं है. आती हैं कंपनीज, बट मोस्टली 6-7 लाख 8 लाख बहुत हो गया, उससे अब नहीं जाता. एंड ऑफ कैंपस यू आर ऑन योर ओन, तो वो तो होता ही है. वो तो NLUs में भी अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है. बट हाँ, एक तुम्हारे साथ टैग होता है, तो दैट हेल्प्स यू इन योर इंटर्नशिप, गेटिंग इन टू योर इंटर्नशिप. बट आफ्टर दैट, आफ्टर यू हैव एंटर्ड योर इंटर्नशिप, तुम्हें लॉ स्कूल मैटर नहीं करता. व्हाट द एफ यू आर डूइंग विथ योर वर्क मैटर्स. एंड एज आई सेड अर्लियर, देयर वर पीपल फ्रॉम NLS इन वन ऑफ द इंटर्नशिप. NLS नालसार, पता नहीं कहाँ से, और नहीं हो पा रहा था उनका ड्यू टू सम रीजन्स, एंड
बहुत नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चे भी दे वर गेटिंग प्लेसमेंट्स फ्रॉम ट्राई, फ्रॉम कैम एंड वेरी गुड प्लेसेस. सो हाँ, एवरेज टू डिसेंट कहूँगी मैं, इतना ज़्यादा मैं क्रेडिट्स नहीं दे रही. बट या एक आई ऑल्सो कैन नॉट अबैंडन दिस कॉलेज कम्प्लीटली बिकॉज एक माहौल मिला है मुझे. दे ट्राई टू मेक इट वेरी अकेडमिक एंड एवरीथिंग, बट अब माहौल ही ऐसा हो गया है. बट इट्स डिसेंट. If you are ambitious enough, if you are selective enough, you will get through it. How did you get into CAM? Please make a video on it. I have not secured a job there. मेरे को इंटर्नशिप मिली थी एंड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है. लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन. एंड पूरा प्रोसेस बताया. Just go through that video. Okay, so the next question is tier 1 firm life actually that daunting? Is it really 12 to 15 hours a day? A, I'm not working in a law firm. B, I have interned there. So let me give you a situation. What was happening with me? So I've interned mostly सारे जगह पे, all kinds of internships I've done, just to find out that one reason where I find it comfortable. I understand it's my age of learning, initial stage है, and I can learn, I can grab things as much as possible. But कोई limitation नहीं है, मैं बाद में भी सीख सकती हूँ. And personally, during my internships, I realized that lifestyle was probably not for me long term. I don't know, I might switch later, but I really respected the learning and the exposure and how sharp people became there. But I also understood that I value a little more balance. And at this point of time, I can't like 24/7 think about work, and I'm a creative person. I like to do multiple stuff. There are reasons why people are switching and coming into consultancy or थोड़ा सा सॉर्टेड पीसफुल काम या खुद का चेम्बर लिटिगेशन. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, गो फॉर इट. स्टील डील. बट भाई आई डोंट नो, मेरे दिल से आवाज़ नहीं आती कि मैं उधर जाऊँ. एंड इफ़ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि पहले आई एक्सप्लोर थिंग्स, देन आई मेक एनी डिसीजन. मेरा CV पूरा इधर उधर हो रखा है कि भाई चाहती क्या हो, क्योंकि आई वॉज जस्ट फिगरिंग आउट कि मेरे को क्या चाहिए. एंड आई वॉज ऑल्सो फिगरिंग आउट कि मार्केट प्लेस में उतनी जॉब है भी कि हम बोल देते हैं कि हम हाँ हमारा तो एक्सपर्टीज़ 4th-5th में ईयर में आके कि डिस्प्यूट्स है एंड कैप मार्क्स है एंड आर्बिट्रेशन है, ETC. सो इट शुड मेक सेंस ऑल्सो नो कि मार्केट प्लेस में इतनी जॉब भी है कि आप निकल पड़े हो अपनी अपनी प्रैक्टिस एरिया पकड़ के. तो बी फ्लेक्सिबल इनफ. अगर मिल रहा है तो ले लो. आई मीन इफ़ यू एन्जॉय फास्ट पेस इन्वायरमेंट, हाई प्रेशर वर्क एंड tier 1 firms can be amazing. But if you feel drawn more towards stability, flexibility and more work-life balance, there's absolutely nothing wrong with choosing in-house or other paths. And taboo है कि नहीं किया तो भाई तुम तो थोड़े से वो हो, बट what you are liking वो ज़्यादा मैटर करता है. किसी का ओपिनियन तुम्हारी लाइफ तुमने ही जीनी है ना. बहुत ज्ञान दे दिया मैंने. चलो, getting the same pay scale as tier 1 in this in-house role, right? So what you should choose? I don't think I'm the right person to answer this question. Better than you, nobody knows what would work for you, and you have to choose between exposure and stability. What would you choose? और ऐसा मत चूज़ करना कि आगे जाके फ्यूचर में तुमने छोड़ना है तो तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो. मतलब थोड़ा सा वाइज डिसीजन. एंड अपने सोचो, यू आर आई मीन वाइज इनफ टू आंसर दिस. एंड मैं तो यार मैं दोनों ट्राई करती. लाइक अगर मेरे पास ऑप्शन होता बाद का, इफ़ आई कुड कंसिडर दिस, एक को होल्ड पे रख सकते थे या कुछ भी ऐसा. वैसे होता तो नहीं है ऐसा कुछ, बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं दोनों ट्राई करती एंड छोड़ भी देती. ये भी मुझे पता है. अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता कि रात को भी जग रहे हो, जैसे मैं अपने दोस्तों की स्टोरी सुनती हूँ, तो दैट इज़ वन थिंग. दिस क्वेश्चन इज़, कैन यू प्लीज़ शेयर योर CV, लाइक व्हाट इज़ द फॉर्मेट? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, बस वो मैंने फॉलो करा है. एंड इफ़ यू वांट इसका कॉपी, सो DM me on LinkedIn, I'll send it to you. Now this question was hurting me. Can I ask you why you didn't get an PPO from Trilegal or any of the top firm? Was it your choice or any reason? Please do let us know. Okay, 2 minutes silence. So basically I got a job. It's a company, it's a think tank basically. It's a vertical of company. And Trilegal नहीं दी भाई मुझे जॉब. Jokes apart, so basically I have interned mostly सारे tier 1s में. And tip, if you are in your 4th year, उस 4th year में अगर तुम होगे, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन लाइक 2026 बैच, तो मेरी हायरिंग 2024 के मार्च में ख़त्म हो चुकी है फॉर टॉप tier 1 फॉर्म्स. सो बी वेरी माइंडफुल. लास्ट ईयर में टॉप tier 1s में मत करना इंटर्नशिप. मतलब करना है कर लो, बट दैट वुड नॉट हेल्प यू गेटिंग अ जॉब. आई मीन ख़त्म हो जाती है अगस्त. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे बैच के लिए अगस्त 2025 मैक्स गई थी, वो भी ऑन कैंपस जाते थे. बट हमारे लिए लाइक ऑफ कैंपस अगर आप ट्राई कर रहे हो, मार्च 2026, अप्रैल 2026
2026 तक तो ख़त्म था सीन, 2026 नहीं सॉरी 2025 ख़त्म था सीन, मतलब 1 साल पहले तुम्हें करना होता है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड फॉर ट्राई लीगल सी। सो मेरे टाइम पे वैकेंसी नहीं थी टीम में, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड उसमें इंटर्नशिप के लिए, मई 2025 था वो, हाँ, समबडी वॉज हायर्ड, सैड, बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है। तो मेरे को कॉल बैक ही नहीं आई, तो पीपीओ ही क्या ही आएगी, और एक्सटेंशन मिला था मेरे को, बट लिया नहीं मैंने। एंड सिंस मेरे को पता चल गया था मेरी टीम में 2 पार्टनर से मैंने बात करी, सब कुछ करा, नेटवर्किंग करी, एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा भी काम अच्छा था, दे वर हैप्पी, बट थोड़ा सा ढीला सा था। एक होता है आप मन से करते हो काम, एक होता है कि आपको जॉब चाहिए भाई, जॉब चाहिए इसलिए कर रहे हो काम। तो मेरा वो डेस्परेशन दिख गया था, मुझे ऐसा लगता है। एंड ट्राईलीगल वॉज वन ऑफ माई बेस्ट ईयर 1 का एक्सपीरियंस। बाकी में मैं कुछ कमेंट्स नहीं करूँगी, बट वहाँ पे आई रियली वांटेड, आई वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बट देखते हैं आगे होगा तो वील सी, वील कन्वर्ट, होपिंग फॉर इट, मैनिफेस्टिंग इट। एंड जहाँ भी मेरे को अभी मिली, आई एम वेरी सेन, आई एम वेरी चिल, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम लाइकिंग इट, इट्स अ न्यू थिंग, बट वहाँ पे भी देखते हैं क्या होता है। सो वी नेवर नो गाइस, एंड योर क्वेश्चन वॉज हर्टिंग मी, सो मिस्टर आयुष, थैंक्स, आई होप यू गेट प्लेस्ड इन ट्राईलीगल। दीदी आप खैतान में अगर इंटर्नशिप की हैं तो प्लीज़ वहाँ का बनाइए। श्योर आई मेक इट यार, मैं भूल जाती हूँ, बट खैतान का चलो मैं यही बता देती हूँ, कुछ मेजर नहीं था उसमें। मेरा पहले तो शॉर्ट लिस्ट हुई थी CV, उसके बाद मेरा PA ने लिया था इंटरव्यू, PA इज़ प्रिंसिपल एसोसिएट, उसमें मैंने चूज़ करा था, क्या चूज़ करा था मैंने, MNA चूज़ करा था मैंने, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एंड उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, एंड वो इंटरव्यू मेरा चल गया था, तो वो हो गया था। एंड आई गॉट नोएडा ऑफिस में डिस्प्यूट्स, वो भी इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी, लाइक आई गॉट टू लर्न अ लॉट, इमोशनली आई वाज ड्रेन्ड, बट एक्सपोजर अच्छा था, एंड सम ऑफ द एसोसिएट्स वर ऑल्सो वेरी स्वीट, बट क्रेजी है भाई वर्क प्रेशर। मतलब मेरे को दुख भी नहीं हो रहा, तुम देख रहे हो, दुख भी नहीं हो रहा कि नहीं हुआ, मतलब टॉप ईयर्स में हो जाता तो उधरी होती, अभी वीडियो बना देती इस पर कि 10 steps how to get into फलाना ढिमकाना जॉब, बट मेरे को इतना कुछ खास ऐसा दुख नहीं हो रहा। आई एम चिल, मेरे को ठीक ठाक पैसे दे दो, ठीक ठाक काम दे दो, शाम को मेरे को कॉल मत करो, बाय। हाउ मच डिड यू गेट पेड? ओके, सबका बताती हूँ। इन ट्राईलीगल मेरे को 15 मिला था, 15,000, एंड कैम में आई गॉट 16,000, एंड KCO में आई गॉट 8,000। सो ऑल्सो आई थिंक पैन कार्ड वगैरह अगर आप नहीं करते हो तो 1-1,500 कट जाते हैं या कुछ, तो ऐसा सीन होता है, क्योंकि कुछ इंटर्न्स के साथ हुआ था, तो वो क्लैरिटी एक बार मतलब रख लेना, हैव अ वर्ड विद HR। वैसे तो बहुत प्यारा सा ओरिएंटेशन लेते हैं, एंड दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट स्टिल तुम अपनी क्लैरिटी रखना। विच कॉलेज यू आर फ्रॉम? अरे एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा। डैम, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव। व्हाट वर द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वर आस्क्ड? अच्छा, कैम में यार बहुत ज़्यादा डिटेल था, कि मतलब प्रैक्टिस एरिया मेरे को याद भी नहीं है, बहुत लंबा फॉर्म था, एंड ऐसे क्वेश्चंस थे लाइक रिलेटेड टू प्रैक्टिस एरिया, ऑल्सो वेरी पर्सनल बेस्ड, लाइक तुम कहाँ रह रहे हो, एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि तुमको कहाँ चाहिए, लाइक इंटर्नशिप का ऑफिस कौन सा सेलेक्ट करना है। देन डिस्प्यूट्स के कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एकेडमिक्स, रिलेटेड टू वेरी सिचुएशनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि ऐसा होता। पर्सनल रिलेटेड HR क्वेश्चंस भी काफ़ी थे, टेक्निकल थोड़े कम थे, एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी थे। तो इट वाज अ फॉर्म, और तुम भर लोगे, मतलब इतना भी नहीं है, बट हाँ दे गिव यू लिमिटेड टाइम। अभी मुझे नहीं पता क्या चेंज हुआ है, बट मेरे टाइम पे दे गिव मी लाइक आधा दिन की इसमें भर के दो, एंड लाइक मैं अपने बारे में पूरी चीज़ें ऐसी पूछ रहे थे जो मैंने कभी सोचा नहीं, कि कुछ HR क्वेश्चन थोड़े पर्सनल भी हो रहे थे, बट ठीक है, इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज फन। बट आई वुड से इंटर्नशिप इज़ लाइक 30 days का थिंग, कि फिर लाइकिंग द वर्क अपना, एंड इफ द टीम इज़ लाइकिंग योर वर्क, तो फिर वो तुम्हें कॉल बैक देती है, एंड एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं, असेसमेंट होती है, एंड देन PPO इंटरव्यू, एंड देन यू गेट प्लेस्ड। बट पैरालीगल पोजिशन इज़ लाइक 1 step अवे फ्रॉम this associate position, because a lot of people take paralegal roles as a stepping stone, ठीक है। It is a way to enter a law firm or a company. So if you perform well, network well, the teams likes your work ethic, तो फिर तुम्हारा convert हो जाता है into assessment और PPO interview होता है तुम्हारा, and then या फिर retain होते हैं positions, roles, depending on the availability and your work and everything. So I mean exploitation भी होता है इसमें, I should not get away with that fact as well.
बट फॉर मी मेरा कैप मार्क्स में लगा था, एंड कैप मार्क्स भाई मुझे कुछ पसंद आया नहीं था, बिकॉज मैंने डिस्प्यूट्स करी हुई थी, मैंने लिटिगेशन करी हुई थी, वो मैं पढ़ वढ़ भी रही थी, और मैंने स्पेशलाइजेशन भी नहीं लिया था। सो बेसिकली वी हैड टू चूज स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल आईपी में, तो मैंने वो भी कॉन्स्टी ही लिया था। तो मतलब मेरा तो इंक्लिनेशन नहीं था, तो आई लेफ्ट दैट, एंड पीपल वर लाइक भाई क्रेजी कर दिया तूने, क्यों छोड़ दिया, जॉब लग जाती। बट आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, बट थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन वाला चीज़ भी है इन आर फील्ड स्पेशली। सो आई डिड नॉट फेल लाइक डूइंग इट, तो मैंने छोड़ दिया। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन यार, मैं तो भूल ही जाती हूँ। हाँ, तो 30 डेज़ वाला इंटर्नशिप हो गया। तो पैरालीगल वाज लाइक, मेरा जो ऑफर था वो 3 मंथ का था, डिपेंडिंग ऑन माई परफॉर्मेंस, तो 3 महीना और बढ़ा रहे थे, लाइक 6 मंथ्स। तो इट्स लाइक A0 को तुम पूरा A0 से एक स्टेप नीचे ट्रेनिंग जैसा ही समझ लो कुछ। तो मतलब कंफर्म नहीं होता तुम्हारा जॉब, बट इट इज़ अ पोजिशन जहाँ पे तुम असेस होते हो। बट इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ एनी प्रैक्टिस, चूज दिस। कहीं ना कहीं तुम्हारा सॉर्ट आगे चल के हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर आता है। एंड बहुत सारे पैरालीगल लोज आजकल फर्म्स, आई वोंट टेक द नेम, बट वो एक्सप्लॉयटेशन भी होती है कि बहुत सारे पैरालीगल्स ले लिए, बट हायर तुमने एक कोई करना है ऑलरेडी, तुमने कहीं से हायर कर लिया है, तो अब पैरालीगल्स मतलब लो पे काम करवा लिया एंड एवरीथिंग। तो वो भी चीज़ें हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू, कम्प्लीटली ऑन योर कॉल। यू शुड especially talk to the team कि भाई क्या सीन है. If it's getting converted, then I'll put all my heart into it, because I've seen people going for these roles not getting placed, getting frustrated, and this is a negative side of this field. But if everything works in your favors, you never know. So it depends on you. अगर disputes होता तो I might have taken a chance, despite मेरा placement होता है कि नहीं. But मेरे लिए cap marks मेरे बस की नहीं थी, and मैंने निकाल लिया था, but यार मेरे से नहीं हुआ था, तो मैंने छोड़ दी थी। मैंने उसको इंटर्नशिप में कन्वर्ट करा ली थी, कॉल बैक वगैरह जो भी था सीन, वो तो खैर कॉल बैक बाद में मिला भी था, बट वैकेंसी नहीं थी, वही वाली सेम स्टोरी रिपीटेड। तो एंड विच योर लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर फॉर लॉ स्टूडेंट बॉट? यार ऐसे तो दैट इज़ समथिंग यू शुड डिसाइड, राइट? बट फोर्थ ईयर में या फोर्थ ईयर में इफ़ यू आर गेटिंग अ पैरालीगल रोल और तुम्हारी जॉब की ऐसी बकैती नहीं है इतनी, तो यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि तुम्हें क्रेजी वर्क एक्सपोजर मिल जाएगा, तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीख जाओगे, एंड द मोमेंट यू आर स्किल्ड इनफ तुम्हें हायर कर लेंगे लोग। एंड सिखाना किसी को इतना बच्चों की तरह पसंद नहीं है, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट। तुम्हें पता रहेगा तो इट वुड बी लिटिल ईजी। एंड अगर तुम्हें लाइक तुम्हारा यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड यू नीड अ डिसेंट पे, बिकॉज अपना एवरेज पे 10 लाख ही होता है हमारी फील्ड में, अनलाइक बीटेक एंड ऑल। सो आई वुड सजेस्ट कि look for more reliable options अगर वो पैरालीगल रोल में कन्वर्शन है। इफ़ अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट देयर लाइक फॉर, अगर बहुत सारे पैरालीगल्स हैं तो इट्स जस्ट लाइक इंटर्नशिप, सेम हसल है, तो इट वुड बी बेटर कि तुम 1 महीना अपना यू गिव योर ऑल एंड देन गेट योर कॉल बैक और असेसमेंट एंड PPO इंटरव्यू, तो हो गया। अब तुम 6 महीना असेस हो रहे हो, उसके बाद तुम्हें पता चल रहा है कि तुम PPO इंटरव्यू तुम्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तुम्हें जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली। मैं नहीं करती, मैंने नहीं किया था। दे कैन यू गिव मी योर लिंक्डइन, आई एम गोइंग टू जॉइन अ लॉ स्कूल सून, आई वुड रियली लाइक सम एडवाइसेस। भाई पहली बात तो मेरे को नहीं लगता आई मीन एट दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम, मेरे को गलत एडवाइसेस नहीं देनी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि तुम्हें ढंग से गाइड कर दूँ मैं, जितना मेरे को समझ आ रहा है मेरी एक्सपीरियंस से। एंड मेरा लिंक्डइन मैं यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूँगी कॉमेंट्स वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में, सो फील फ्री टू टेक्स्ट मी। Next question is, lots of internships in particular niche can help in getting tier 1 internships. Yeah, it can. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने टैक्स चूज़ किया है, तुम्हारे एक्सपीरियंस उसी फील्ड में भर रहे हैं, तो जब तुम tier 1 की इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यू भी दोगे तो तुम प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, यू बिन वर्किंग ऑल इन देयर। अब तुम, लेकिन देयर इज़ वन मोर वे आउट कि लोग डिफरेंट करते हैं, क्योंकि बहुत बार तुम्हारे अवेलेबल मंथ्स में वो प्रैक्टिस एरिया फुल हो चुका होता है, वैकेंसी नहीं होती है फॉर इंटर्नशिप, तो तुम शिफ्ट कर लेते हो। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि दे डू एक्सपीरियंस सारे प्रैक्टिस, ताकि जो भी प्लेसमेंट का सीन है दे विल ग्रैब इट, दे विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स। बट कुछ लोगों का होता है एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस एरिया लेके उसको ही लेके चलो एंड टारगेट उसको करो। सो वट एवर वर्क्स इन योर फेवर, दोनों करके देखो। वैसे नीश वाला बेटर रहेगा क्योंकि तुम्हें ज़्यादा वो रहेगा, बट हाँ तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर लिमिट हो जाएंगी। कीप अ नोट ऑफ दैट, एंड या it is a good idea. Hi, so I was reading all your messages on LinkedIn and I was replying. I tried to answer all your queries जितने भी हैं, क्योंकि I realized कि इसको मैं शूट नहीं कर सकती, because I mean literally इतने लंबे लंबे questions हैं भाई, मतलब I don't think हो पाएगा। So मैंने reply कर दिया है जितना में से हो पाया, and I tried to
understand your concerns as well, and thank you so much for trusting me with all of this and showing me, like, reaching out to me. I mean, I love it. I don't have any issues for that. And I hope I answer all your questions and I guide you well. I'm little I mean, I feel very, जैसे मैं adult person हो गई हूँ, एकदम adult, very not a बच्चा for sure. So thank you so much for trusting me with all of this, and I hope I've answered all your queries. And if there's anything you want me to make part 2 of it, let me know in the comments down below. And अभी 12 बज रहे हैं, लो तुम देखो 12 बज रहे हैं अभी, and I'm shooting this video. And do you really want to see the setup? इसमें मैंने क्या setup किया हुआ है, ये देखो देखो भाई, खुद का setup. This is my setup. क्या क्या करवाती है ज़िंदगी. एनीवे, ज़िंदगी नहीं है, मेरी ही चुल है. तो आई लव मेकिंग एंड शूटिंग कंटेंट फॉर यू ऑल एंड फॉर माई सेल्फ. एंड सो लेट्स जस्ट रैप दिस वीडियो. वो सोना भी है एंड आई एम टायर्ड एंड गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो चुकी है. सो थैंक यू सो मच. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज बताओ नीचे कमेंट्स में. एंड आई होप यू लाइक इट. चलो बाय.